Good afternoon, my dear students. Good afternoon. Mm, which language is this, Sasirekha? I think it's not Kannada. If it's Kannada, I'm able to understand. Apart from Kannada, I don't understand Tamil or Telugu or Malayalam or Tulu. Any of that sort, I don't understand. I understand only Kannada. Okay, great. Good afternoon, Suma. Good afternoon, everyone. Okay. So, as you know, we have completed all the chapters which were in your syllabus. तो उनका सब हमने सफाया कर दिया. अभी we have started with the previous chapters, okay, which were left. Okay, हम लोगों ने जब start किया था, we had started with the biomolecules, you know that. Okay, so before biomolecules, whichever chapters were remaining, that we have to do now. Okay, so today we will finish off the cell unit. अगर आज हम लोग cell unit खत्म करेंगे, so from tomorrow we can start with the structural organization or morphology of flowering plants or anatomy or any one of those chapters. Okay, great. Yeah. So in the last class, we have, understood the half part of the cell, the unit of life. Okay, we have understood about the prokaryotic cells and their composition and whatever the structures which are present in the prokaryotes, everything we have studied. Okay. So now we are going to study more about the eukaryotic cells. Okay. So what are eukaryotic cells? They have well organized membrane bound nucleus and organelles. Okay, wait a second. Okay. So this was the point, right? In the prokaryotes, it was, the prokaryotic cells, they didn't have the very well organized nuclear membrane. Okay, that's why we gave the name prokaryotic. I had told you, karyo refers to nucleus. Okay, karyo refers to nucleus, u refers to true. तो यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है. प्रोकैरियोट्स में प्रो मींस प्रिमिटिव, इंसिपिएंट, ओके, प्राइमरी. तो इसीलिए वहां पे प्रिमिटिव न्यूक्लियस है इन द प्रोकैरियोट्स. वहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता, whereas in the eukaryotes it is very well membrane bound nucleus and we have organelles here. Okay, then presence of membranes give clear compartmentalization of cytoplasm. और साइटोप्लाज्म में आप क्लियर कंपार्टमेंट्स देख सकते हो, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, वैक्यूल हो गया, राइबोसोम्स हो गए, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, एवरीथिंग इज परफेक्टली कंपार्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ कंपार्टमेंट्स. ठीक है, एक ऐसा नहीं है कि पूरे एक दूसरे के साथ शफल्ड है. ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हर चीज अलग अलग है. See, in the prokaryotes, nucleoid was present in the cytoplasm, but here in these cells, the DNA, which we call it as a genome, is present inside the nucleus. ओके, तो न्यूक्लियस है, उसके अंदर डीएनए है. अभी बाहर जो भी साइटोप्लाज्म है, इनसाइड द साइटोप्लाज्म वी कैन सी द ऑर्गेनेलीज, अदर ऑर्गेनेलीज. ठीक है, सो दैट काइंड ऑफ कंपार्टमेंटलाइजेशन वी कैन सी, okay, in the cytoplasm also. Now, they have complex locomotory and cytoskeleton structures. What do you mean by locomotory structures? Okay, these are the structures which help the organism or the cell to move. ठीक है, सेल को मूव करने के लिए हेल्प करता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिया है जैसे प्रोटिस्ट सेल. Okay, so protists are what? They are also eukaryotic cells. Okay, but you can see in a protista there are many types of locomotory structures. Like amoeba में pseudopodia है, ठीक है, पैरामीशियम में सीलिया है, यूग्लिना में फ्लैजेला है ना. तो दे हैव कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स. साइटोस्केलेटल मतलब क्या बेटा? यू कैन सी, if you see this cell here, okay, there is a plant cell and an animal cell. Okay, you can see वैक्यूल इज अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर एरिया, न्यूक्लियस एक जगह पे अरेंज्ड है, माइटोकॉन्ड्रिया एक तरफ है, क्लोरोप्लास्ट एक तरफ है. ऐसा नहीं है ना कि ड्यू टू ग्रेविटी सारे ऐसे नीचे गिर गए. लेट मी टेल यू लाइक दिस. अभी एक सेल है बेटा, इट्स अ सेल. सो ऐसा नहीं होता ना कि ग्रेविटी के प्रेशर में आके सारे ऐसे नीचे गिर गए. नो, राइट, दे आर प्लेस्ड. Okay, they are placed in the definite positions. So why that's happening? That's because of cytoskeletal structures. Okay, वहां पे tubulin structures होते हैं, microtubules होते हैं. Okay, all those fibers makes the intact presence of organelles inside a cell. Otherwise क्या होता है बेटा? ग्रेविटी है, ठीक है, सारी चीज नीचे गिर जाती
है ना। अब हमारे सारे मसल्स को किसने पकड़ के रखा है, हमारा स्केलेटन ने पकड़ के रखा है, ठीक है। स्केलेटल को लग के स्केलेटल मसल्स हैं, फिर उसके अलावा दूसरे सारे मसल्स हैं, हमारा हेड है, हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, फिर हमारे रिब्स हैं, ये सारी चीजें मिल बन के हम लोग ऐसा एक स्ट्रक्चर दिखता है हमारा, है ना। अदरवाइज बस ऐसा एक मास होता तो पूरा ग्रेविटी के कंट्रोल में आके कहीं पे नीचे पड़ा हुआ होता। ऐसे हम इतने लंबे 5 फुट 6 फुट ऐसे नहीं नजर आते आपको, है ना। सो सेम गोज विद द सेल ऑल्सो। नाउ द जेनेटिक मटेरियल इज ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स, ठीक है। सो फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम्स यू कैन ओनली सी दिस इन द यूकैरियोट्स, ठीक है। न्यूक्लियड तो होता है, ओके, डीएनए भी होता है प्रोकैरियोट्स में, बट फॉर्मेशन इनटू क्रोमोसोम्स ये आप देखते हो सिर्फ यूकैरियोट्स में, ठीक है। चलो, now what are the cell organelles that you can found in plant cell? Okay, for main very you can say the better difference between the plant cell and animal cell, तो उसमें आप देख सकते हो बेटा presence of cell wall. In plant cell we have cell wall, we can see the cell wall, but in the case of animal you won't see the cell wall, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में होता है, सेम टाइप का सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम भी ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है, तो उसमें कुछ डिफरेंट नहीं है ऐसा। Other than that, mitochondria is also present in both plants and animals. Plastids is the one which is found in plants but not animals. Ribosomes दोनों में होते हैं, cytoskeleton दोनों में होते हैं, ठीक है। Whereas cilia and flagella, these are the locomotor structures which are found in the plants, sorry, animal cell, ठीक है। एनिमल सेल में आपको देख सकते हो आप लोग, प्लांट सेल में नहीं दिखता आपको ये सब चीजें। देन कमिंग टू सेंट्रोल एंड सेंट्रोसोम, दिस आल्सो सीन इन एनिमल सेल्स, ठीक है। मैं एनिमल सेल को ऐसे लिख देती हूँ, ओके, एनिमल, दिस इज फाउंड इन एनिमल्स। सिलिया फ्लैजेला इज फाउंड इन एनिमल सेल, ठीक है। न्यूक्लियस दोनों में होंगे, एंड देन माइक्रोबॉडीज। चलो ऐसे आप एनिमल सेल में भी देख लो some of the cell organelles. Just look at the picture, okay, picture will give you the clear understanding of the cell, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो, डू यू सी सेल वॉल हियर? नो, यू कैन नॉट सी सेल वॉल हियर, यहाँ पे सेल वॉल आपको नहीं दिखेगा, प्लास्टिड्स नहीं दिखेंगे, ठीक है। whereas यहाँ पे आपको सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम्स दिखेंगे, ओके, दैट वाज एब्सेंट इन प्लांट सेल्स, like that, okay। तो बेटा क्लियर डिफरेंशिएशन आई विल गिव यू दैट एट द एंड ऑफ द सेशन, ठीक है। प्लांट सेल एनिमल सेल का परफेक्ट डिफरेंसेस मैंने वहां पे रखे हैं, विल टॉक दैट देयर, okay। So first thing that we need to talk about is the cell membrane, okay। So what is this cell membrane? beta it is a very important question even in your CBSE also, आपके बोर्ड एग्जाम में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हम कहते हैं बेटा फ्लूइड मोजेक मॉडल, ओके, फ्लूइड मोजेक मॉडल कहते हैं इसको, एंड इट इज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस पीपल, सेल मेम्ब्रेन इज द क्वासी फ्लूइड। क्वासी मतलब जैसे समझो एक सेमी फ्लूइड है, इसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, ऐसे वेव की तरह ऐसे फ्लो करता है ऐसे, ओके, जस्ट लाइक अ वेव, लाइक दिस, इट मूव लाइक दिस, ठीक है। तो इसको बोलते हैं शेप, बिल्कुल एक पर्टिकुलर शेप नहीं है इसका, जैसे फ्लूइड, इट मूव्स लाइक अ वेव, ठीक है। इसको बोलते हैं क्वासी फ्लूइड, एंड इट हैज द स्ट्रक्चर विच इज मेड अप ऑफ लिपिड, ओके। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड enables the lateral movement of proteins within the overall bilayer। so in this bilayer, तो ऐसा lateral जो movement होता है ना, ऐसे ऐसा वेव जैसा मूवमेंट, दिस इज बिकॉज ऑफ द लिपिड नेचर। आपको पता है बेटा, यहाँ पे दोनों जो आप देखते हो कंपार्टमेंट, वी कॉल इट एज अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ओके। यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, लिपिड के बाइलेयर्स होते हैं, ओके। हाइड्रोफोबिक टेल्स होते हैं, हाइड्रोफिलिक हेड्स होते हैं, ठीक है। so that we can see here, apart from that there are many other components also, we'll see that one by one, ठीक है। now this ability to move within the membrane is measured as its fluidity, ठीक है। हमने बोल रहा है ना, क्वासी मीन्स व्हाट, इरेगुलर विच डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक शेप, ठीक है, उसको हम बोल रहे हैं क्वासी। बट विद द क्वासी वी आर एडिंग फ्लूइड, दैट मीन्स इट शोज सम फ्लूइडिटी नेचर, राइट। तो इसका फ्लूइडिटी नेचर क्या है? इट्स दिस ओनली, okay, the ability to move within the membrane is measured as the fluidity, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है ना, तो इसके बीच में भी मूवमेंट होती है, ठीक है, दे ऑल्सो मूव, ओके। कुछ लैटरली मूव करते हैं, कुछ अपसाइड डाउन फ्लिप करते हैं, ठीक है, ऐसे लैटरली ऐसे फ्लिप करके जाते हैं, ये ऐसे हिलते हैं, इनके जो टेल्स है ना वो हिलते हैं, ठीक है। जब ये टेल्स हिलते हैं तो वो हम लोगों को जैसे वेव मूवमेंट लगता है ना, वो नजर आता है, ठीक है। चलो, देन okay, we have come to functions. Before functions, you can see here
यू कैन सी द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स हियर। ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन्स है, जैसे इंटीग्रल प्रोटीन होता है, एक्सटर्नल प्रोटीन होता है। ठीक है, देखो अगर इस बाइलेयर के ऊपर ऐसा प्रोटीन फ्लोट कर रहा है जस्ट लाइक अ आइसबर्ग, सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल प्रोटीन। अगर प्रोटीन कोई दोनों बाइलेयर में एम्बेडेड है, देन वी कॉल इट एज अ इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। तो जो ऊपर है या फिर नीचे है उसको हम लोग एक्सटर्नल या पेरिफेरल भी कह सकते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव प्रोटीन चैनल्स। सो फ्रॉम दिस चैनल द प्रोटीन विल मूव इनसाइड टू आउटसाइड और आउटसाइड टू इनसाइड। ठीक है, इसके अलावा बेटा वी कैन सी द ग्लाइकोप्रोटीन हियर। Okay, you can split the term to understand its meaning. Glyco means glucose, protein is protein. Similarly, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर फॉर्म है ना, देखो नीचे प्रोटीन है, ऊपर ग्लूकोज है। ठीक है, तो इसको आप क्या कह दोगे, ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन विद कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखो ये ग्लूकोज है, अभी डायरेक्टली लिपिड को अटैच हो गया है ना, जो हम लोग बोल रहे हैं लिपिड बाइलेयर जो है उसको ही डायरेक्टली ये अटैच हो गया ग्लूकोज, तो इसीलिए इसका नाम हमने रख दिया ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, तो लिपिड विद कार्बोहाइड्रेट अटैच टू इट। All right, so these are all what, these are all the types of proteins or the structures which are present along with the lipid bilayer. ठीक है, अब ये बेटा ये आउटसाइड द सेल है, अब ये इनसाइड द सेल है। तो इनसाइड द सेल में आप क्या देख सकते हो, साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स। आई टोल्ड यू राइट, दीज आर अ काइंड ऑफ फाइबर्स। ये फाइबर्स हैं, फिलामेंट्स हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया को उसकी प्लेस में रखे हैं, वैक्यूल को उसके प्लेस में रखे हैं, न्यूक्लियस को उसके प्लेस में रखे हैं, एकदम से सारे एक तरफ ग्रुप नहीं हो जा रहे। तो ये हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स। ठीक है, चलो नाउ व्हाट इज द मेन, हाँ आई वांटेड टू टेल यू वन मोर थिंग। जो सेल मेम्ब्रेन है ना बेटा, ये सेल मेम्ब्रेन इज सिमिलर टू एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। ओके, प्लांट सेल में भी सेम टाइप का सेल मेम्ब्रेन मिलेगा, एनिमल सेल में भी सेम टाइप का सेल मेम्ब्रेन मिलेगा आपको। इवन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है वो भी ऐसा ही रहेगा, लिपिड बाइलेयर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू सी एनी ऑर्गेनेलिस का सेल मेम्ब्रेन वो भी ऐसा ही रहता है। ठीक है, सो सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल, एनिमल सेल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द ऑर्गेनेलिस सेल मेम्ब्रेन, सॉरी ऑर्गेनेलिस मेम्ब्रेन, सारे चारों जो है ना, दे ऑल फोर शो दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो होगा, क्या फंक्शन करते हैं वो देखते हैं हम लोग। ओके, देयर मेन फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, मॉलिक्यूल्स इनसाइड और आउटसाइड सेल। ठीक है, अंदर लेना सेल के या फिर सेल के बाहर डालना। ठीक है, एंड वी कॉल इट एज अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब क्या, जो सेल के बाहर जो भी चीज दिखी वो अंदर नहीं लेता। ओके, देखता है, हाँ भाई मैं सेल हूं, मुझे जरूरत है इस चीज की, इस मॉलिक्यूल की, तो ही मैं लूंगा, अदरवाइज मैं नहीं लूंगा। ठीक है, ऐसा इनका फंक्शन होता है। ओके, सो बेस्ड ऑन देयर नीड एंड रिक्वायरमेंट दे विल रिसीव ओनली सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स और मटेरियल्स। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। देन ड्यू टू द फ्लूइड नेचर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन हेल्प इन द सेल ग्रोथ and formation of intercellular junctions, secretion and endocytosis, cell division. Okay, so there are so many things here. Let me tell you one by one. Cell growth होता है, तो क्या बेटा cell growth का meaning क्या है? Okay, so when, let me tell you, in primitive organisms, or you can say in the case of unicellular organisms, वहां पे क्या होता है बेटा, you have studied this in the chapter of the living world. वहां पे क्या होता है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव। अगर मैंने पढ़ाया है तो आपको बताया होगा, मैंने ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ाया है। ठीक है, म्यूचुअली इंक्लूसिव, दैट इज इन द केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो क्या होता है, मतलब इसका मतलब क्या है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन और म्यूचुअली इंक्लूसिव इन द केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मतलब अगर एक अमीबा है तो ये अमीबा क्या करेगा, ये ग्रो करेगा, ये बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, बढ़े के बाद क्या हो जाता है, एक टाइम पे जाके ये दोनों स्प्लिट हो जाते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज सेल ग्रो हुआ, ग्रो होने के साथ ये स्प्लिट भी हो गया। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं म्यूचुअली इंक्लूसिव। व्हेन वी से सेल ग्रोथ, बोथ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन अकर्स। दिस हैपेंस इन द केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। बट व्हेन वी टॉक अबाउट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, वहां पे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ओके, दे आर एक्सक्लूसिव। मतलब आप ना सिर्फ सेल ग्रोथ, मतलब आप सिर्फ सेल ग्रोथ देखते हो, वहां पे रिप्रोडक्शन नहीं देखते। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आप अगर एक प्लांट देख रहे हो या एक एनिमल देख रहे हो, नाउ इट इज अ बेबी। अगर प्लांटलेट है
तो वो प्लांट का है, अगर फीटस है तो एनिमल का है। अब ये फीटस ना फिर वो बेबी होगा, फिर वो बेबी से एक बॉय होगा या गर्ल होगा, ठीक है, उसका पूरा एक वेजिटेटिव फेज होता है, उसके बाद अडोलेसेंस में आके इट रिटेन्स, इट गेट्स द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स या फिर प्यूबर्टी कह लो। तो अप टू प्यूबर्टी व्हाट इज दैट? ओके, अप टू प्यूबर्टी क्या हो रहा है? वो ग्रोथ हो रहा है ना, सेल्स के ग्रोथ हो रहे हैं, बच्चा बढ़ रहा है। ओके, दैट इज द एंटायर ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल। ये प्लांट में भी होगा, एनिमल में भी होगा। अगर प्लांट में हो रहा है तो यू विल सी द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर्स। वंस यू सी द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर्स इन द प्लांट्स, यू विल कम टू नो दैट हाँ भाई प्लांट अभी रिप्रोडक्टिव स्टेज में आ गया है। जब तक प्लांट में फ्लावर्स नहीं होते तो आप कह सकते हो कि हाँ भाई इट हैज नॉट ग्रोन प्रॉपरली इट, मतलब इसको अभी भी अडल्ट होना बाकी है। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे ग्रो होना मतलब आप रिप्रोडक्शन करने के लिए रेडी नहीं हो। ग्रो आप नॉर्मली भी करते हो, ठीक है, 1 ईयर से 2 ईयर, फिर 2 ईयर से 4 ईयर, ऐसे होता है ना, वो भी ग्रो है। बट ग्रोथ इज नॉट इक्वल विद द रिप्रोडक्शन इन द केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। प्लीज डू रिमेंबर दैट। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। ठीक है, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अभी सेल ग्रोथ कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? इट इज बिकॉज ऑफ दैट क्वासी नेचर, दैट फ्लूइडिटी नेचर। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस। ठीक है, दो सेल्स के बीच में एक जंक्शन बना होता है फॉर द इंटर कम्युनिकेशन, तो उसके लिए भी जरूरी है प्लाज्मा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, देन सेक्रीशन, अगर कुछ भी सेल ने बनाया है तो उसको बाहर सेक्रेट करने के लिए जरूरी है। देन एंडोसाइटोसिस, व्हाट डू मीन बाय एंडोसाइटोसिस? एंडो मींस इनसाइड, साइटो मींस सेल। ओके, तो अभी क्या हो रहा है बेटा, अभी समझ लो ये एक सेल है, ठीक है, कोई एक सेल है नॉर्मल, प्रोटिस्टन सेल समझ लो, अमीबा समझ लो। ठीक है, तो बाहर इसका फूड है, ठीक है, तो बाहर इसका फ्लूइड है, तो अब इसके पास भी मेम्ब्रेन है, तो अब ये क्या करेगा? अब ये क्या करेगा बेटा? इट विल डू द एंडोसाइटोसिस। ठीक है, ये आएगा सूडोपोडिया से एक्सटेंड करेगा, इसको अंदर ले लेगा। ठीक है, so similar kind of thing you will see in macrophages also. We call that as a phagocytosis, but there is a difference here. Okay, तो एंडोसाइटोसिस इज अ डिफरेंट, यहाँ पे क्या होता है, सेल को ही, पूरे सेल को अंदर लेता है। ठीक है, वन सेल एनगल्फिंग अनदर सेल, सो दैट इज बिकॉज ऑफ द फ्लूइडिटी नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन। ठीक है, ऐसे होता है, नॉट इन एवरी प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ओके, इट हैपेंस इन द यूकैरियोटिक सेल्स लाइक इन द प्रोटिस्टन्स, वहां पे हो सकता है। ठीक है, सेल डिवीजन आप देखोगे, हाँ बिल्कुल, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ना सेल डिवीजन में। ओके, तो सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है प्लांट्स में, क्लीवेज फरो फॉर्मेशन होता है एनिमल्स में। सो दैट फ्लेक्सिबिलिटी ड्यूरिंग द division of cell, it is because of this cell membrane. ठीक है, then apart from that you have to also study there are how many types of transport. ठीक है, ट्रांसपोर्ट मैंने बताया, इट्स अ सेमी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, तो जो बॉडी के लिए नीडेड है सिर्फ उसी को लेता है या देता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कितने टाइप के हैं? पैसिव एंड एक्टिव। सो व्हाट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट? Before studying the passive and active, you must know something, okay, that always exists in our body, that is called as concentration gradient or ionic gradient, या कुछ भी हो बेटा, gradient का मतलब है difference। ठीक है, तो difference होता है बेटा। हमारा एक ह्यूमन बॉडी या फिर समझ लो कोई भी एक ऑर्गेनिज्म का बॉडी ना कभी भी ऐसे इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं जाता, जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो। ठीक है, फिजिक्स में क्या होता है, समझ लो दो कंटेनर्स हैं, ठीक है, उनके बीच में तुमने एक मेम्ब्रेन डाल दिया, तो क्या करेंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स जहां पे कम है वो ज्यादा में जाएंगे और वो इक्विलिब्रियम अटेन कर लेंगे, और वो क्या कहते हो तुम, सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाते हैं। ठीक है, तो वो हैपेंस इन द नॉन लिविंग कंडीशन। ओके, नॉन लिविंग कंडीशन में वो होता है, और आप सारी केमिस्ट्री आप समझते हो, बट एनिमल्स में या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट मेकिंग एन इक्विलिब्रियम, इट्स अबाउट मेंटेनिंग ग्रेडियंट। कई बार ग्रेडियंट मेंटेन करके रखना पड़ता है बिकॉज फॉर मेटाबॉलिज्म और फिजियोलॉजी टू परफॉर्म। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं, काउंटर करंट मैकेनिज्म आपने पढ़ा होगा, है ना, काउंटर करंट मैकेनिज्म, यू रिमेंबर? लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा के बीच में जो सॉल्ट्स एंड वाटर का मूवमेंट होता है इन एंड आउट, ओके, उसको हम कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो वहां पे अगर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में सल्यूट्स ज्यादा नहीं होंगे तो क्या होगा, लूप ऑफ हेनले से पानी नहीं बाहर जाएगा। ठीक है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से पानी नहीं बाहर जाएगा। अब पानी बाहर नहीं गया तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में। ठीक है, तो ऐसे करके सारे चीजों से एक चीज कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो दैट्स व्हाई मेंटेनिंग ग्रेडियंट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट द लिविंग सिस्टम।
ठीक है, तो इसीलिए ऐसे सिस्टम में आप दो टाइप का ट्रांसपोर्ट देखते हो, एक पैसिव एंड एक्टिव। जो पैसिव है वो कैसा होता है, वो होता है अलोंग द ग्रेडियंट। ओके, इट हैपेंस अलोंग द ग्रेडियंट, मतलब क्या बेटा, जहां पे मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं वहां से कम मॉलिक्यूल्स की तरफ मूव करना, इसको हम कहते हैं अलोंग द ग्रेडियंट। ओके, व्हेन वी से अगेंस्ट द ग्रेडियंट और ऑपोजिट टू ग्रेडियंट, तो इसका मतलब क्या है, अब ये देखो ये ए है, ओके दिस इज ए, दिस इज बी, ओके ये ए है ये बी है। अब क्या होगा बेटा, अब ए में मॉलिक्यूल्स कम है ना, नेचुरली क्या होना चाहिए, बी में मॉलिक्यूल ज्यादा है ए में कम है, तो बी से ए की तरफ मॉलिक्यूल्स को मूव करना है, दिस इज अलोंग द ग्रेडियंट। अब जब हम कह रहे हैं कि अगेंस्ट द ग्रेडियंट, ओके सो अगेंस्ट द ग्रेडियंट इसलिए है क्योंकि लेस मॉलिक्यूल से वो ज्यादा मॉलिक्यूल्स की तरफ मूव कर रहा है। Okay, so I wanted to tell you that my video is turned off today. That is because I have a internet connectivity ka problem here. So that's why only for today I have not turned off the videos. Okay, so I have changed the location here. So that has been the problem. From tomorrow it will be rectified. Okay, I want to tell you that to the students. Chalo, we'll move here. Then if you see here in the active transport, here energy is utilized, and for the energy we need the ATP. ओके, एनर्जी भी जरूरत है, देन एटीपी भी जरूरत है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द पैसिव ट्रांसपोर्ट, देयर वी डोंट नीड एनर्जी। व्हाई? बिकॉज आई टोल्ड यू, बिकॉज द मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम द अलोंग द ग्रेडियंट, जहां पे मॉलिक्यूल ज्यादा है तो उससे कम की तरफ जाता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? दिस इज द टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आपने देख लिया, तो अब आपके सिस्टम में क्या पढ़ना है बेटा, आई थिंक आपने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स आपके आपके सिलेबस में नहीं होगा, शायद है आपके सिलेबस में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स अगर होता तो आपने ये चीजें बहुत अच्छे से पढ़ ली होती, जैसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, व्हाट इज ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। डू यू हैव दैट इन योर सिलेबस? नहीं है ना? प्लीज रिप्लाई। आर यू देयर? ओके, चलो नो प्रॉब्लम। मेरे जितना मेरी नॉलेज है उसमें तो नहीं है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ाया है आपको। हाँ यस सुमा, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग। नहीं है, तो अगर होता ना तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा क्लियर नॉलेज मिलता है इसमें, डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। ठीक है, सो नाउ if you see what is diffusion, you can see here one, that means here there is a cell membrane. From cell membrane you can see molecules move from higher concentration to lower concentration. Okay, this is happening with the passive transport. जो diffusion हो रहा है ना वो passive transport है, that means molecules move along the gradient. ठीक है, ज्यादा से कम की तरफ मूव कर रहे हैं। सेम गोस विद द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यहाँ पे भी क्या होगा, मॉलिक्यूल्स जहां पे ज्यादा है वहां से कम की तरफ मूव होगा, बट द ओनली थिंग इज दैट हियर सिंपली लिपिड बाइलेयर से मूव करके नहीं जाते ये, इनके पास एक पूरा एक पाथवे होता है, एक चैनल होता है, थ्रू द चैनल द मॉलिक्यूल्स आर फैसिलिटेटेड टू गो। ठीक है, मॉलिक्यूल्स को पूरा फैसिलिटेट करके देता है एक प्रोटीन चैनल, समझ लो कोई एक मॉलिक्यूल कैरियर चैनल, that kind of things. So यहाँ पे भी क्या हो रहा है, it is a facilitated diffusion. Diffusion means simple moving from higher molecular concentration to lower molecular concentration. ठीक है, but यहाँ पे facilitated क्यों है, क्योंकि there is a channel here to facilitate the movement. Okay, तो ये भी passive transport है, but when we come to active transport, ठीक है, डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दोनों ही पैसिव हैं। ठीक है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, इट इज हैपनिंग अगेंस्ट द ग्रेडियंट। ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेडियंट हो रहा है, तो जहां पे कम मॉलिक्यूल्स है वहां से ज्यादा की तरफ मूव हो रहा है, और इसके लिए एटीपी की जरूरत है। ठीक है, एटीपी की जरूरत है। सो दिस इज अबाउट द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, बहुत सिंपली मैंने आपको समझाया है, प्लीज डू रिमेंबर दोस थिंग्स। ठीक है, देखो देखो यहाँ पे देखो, इन दिस पिक्चर यू विल गेट द परफेक्ट आइडिया। ठीक है, सो सिंपल डिफ्यूजन, molecules from higher concentration to lower concentration. Facilitated diffusion, higher concentration to lower concentration, but with the facilitation of carrier carrier protein channels.
ओके ऐसा चीजें से मूव होता है, ठीक है। देन एक्टिव ट्रांसपोर्ट जहां पे कम मॉलिक्यूल्स है वहां से ज्यादा की तरफ मूव हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको एनर्जी की जरूरत है एंड एनर्जी इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। चलो नाउ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन along the concentration gradient, that is from higher concentration to the lower concentration, is happening without the expenditure of energy। अभी भी मैं आपको समझाया, जहां पे मॉलिक्यूल ज्यादा है उससे जब कम की तरफ मूव होते हैं लेस कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, वहां पे एनर्जी की जरूरत नहीं होती। ओके सो दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ अ डिफ्यूजन, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देख लो, देर आर टू टाइप्स, ओके देर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट हियर, सिंपल डिफ्यूजन एंड वन इज ऑस्मोसिस। सो व्हाट इज सिंपल डिफ्यूजन? मूवमेंट ऑफ न्यूट्रल सोल्यूट्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ऐसे सोल्यूट्स हैं जो अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव कर रहे हैं, ठीक है। व्हेन यू सी द ऑस्मोसिस हियर व्हाट हैपेंस, सी ऑस्मोसिस का डेफिनेशन इज अ बिट डिफरेंट, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है डेफिनेशन, क्योंकि यहाँ पे बस सिंपली दिया है बेटा, बट व्हेन यू स्टडी द ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स वहां पे आपको क्लियर डेफिनेशन डेफिनेट प्रॉपर डेफिनेशन मिल जाएगा। सो व्हाट इज ऑस्मोसिस? मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे मूवमेंट के बीच में मेम्ब्रेन होना जरूरी है बेटा। सिंपल डिफ्यूजन के लिए देयर इज नो नीड टू बी अ मेम्ब्रेन, मतलब वहां पे एक मेम्ब्रेन का होना कंपल्सरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट डिफ्यूजन के लिए जरूरी नहीं है कि मेम्ब्रेन होना। क्यों? क्योंकि बेटा डिफ्यूजन ना हम सिर्फ लिक्विड का नहीं कहते, मॉलिक्यूल्स का नहीं कहते, गैसेस भी कहते हैं। ओके डिफ्यूजन हैपेंस गैसेस आल्सो। जब आपने परफ्यूम लगाया है तो क्या होगा, आपके पास, आपने परफ्यूम लगाया है, आपके पास परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा हैं। अगर आपके बगल में कोई बंदा खड़ा है तो उसको भी परफ्यूम की स्मेल जाएगा, मॉलिक्यूल्स जाएंगे, ठीक है। तो वो गैसियस है, बट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट हियर सॉल्यूशन सॉल्यूट्स एंड एवरीथिंग, तो यहाँ पे बेटा जो डिफ्यूजन होता है वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। सो ऑस्मोसिस इज मूवमेंट ऑफ वाटर, ऑस्मोसिस में हमेशा मूवमेंट ऑफ वाटर कहते हैं, बट डिफ्यूजन में आप बेटा मॉलिक्यूल्स कह सकते हो, सॉल्यूट्स कह सकते हो, कुछ भी, ठीक है। चलो नाउ सो द पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। ओके सो आई होप यू नो दैट हमारा जो लिपिड बाइलेयर है बेटा ये नॉन पोलर है। पोलर का मतलब क्या है बेटा? सिंपल चीज मैं आपको समझाती हूँ। पोलर का मतलब जहां कहीं पे भी आप ऐसा प्लस या माइनस, ओके मेम्ब्रेन के बीच में कुछ पोलैरिटी देखते हो तो उसको हम कहते हैं बेटा पोलर। जब ऐसा कुछ नहीं है, प्लस माइनस की कंडीशन नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन पोलर, ठीक है। अब अगर कोई ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, अब कोई अगर ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो पोलर हैं, समझ लो अब मैं बताऊंगी सोडियम, ओके तो सोडियम, ओके देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ माय पेन, ओके Na+। अब Na+ क्या है? Na+ पोलर है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ऐसे पोलर मॉलिक्यूल्स ना डायरेक्टली पेनेट्रेट करके नहीं जाएंगे लिपिड बाइलेयर में, ठीक है। सो क्यों? क्योंकि लिपिड बाइलेयर तो नॉन पोलर है, ओके जो नॉन पोलर है वो मॉलिक्यूल्स चले जाएंगे आराम से, लेकिन जो पोलर हैं जैसे सोडियम, Na+, K+, Cl-, ऐसे चीजें क्या होते हैं बेटा? दीज आर पोलर मॉलिक्यूल्स, सो दे नीड अ फैसिलिटेटेड प्रोटीन और अ कैरियर प्रोटीन, ताकि वो मूव करके जा सके एक मेम्ब्रेन से दूसरी मेम्ब्रेन की तरफ, ठीक है। इज इट क्लियर? यहाँ पे कुछ आपको डाउट्स है? एनी डाउट्स यू हैव हियर? इट्स वेरी सिंपल बेटा, मैंने आपको समझाया। डिफ्यूजन में भी गैसियस डिफ्यूजन होता है, लिक्विड डिफ्यूजन होता है, जो आपके सिलेबस में जो आप यहाँ पे देख रहे हो दिस इज अ सिंपल डिफ्यूजन जो बॉडी में हो रहा है। तो हमारी बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिक्विड की ही बात हो रही है, तो इसीलिए अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस तो बेटा मूवमेंट ऑफ वाटर है। डिफ्यूजन में वी कैन टॉक अबाउट मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट्स एंड ऑल्सो वी कैन टॉक अबाउट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। तो पोलर मतलब जो प्लस या माइनस उसके ऊपर इंडिकेशन हो, ठीक है। नॉन पोलर मतलब बिल्कुल प्लस माइनस कुछ नहीं है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स आराम से पेनिट्रेट करके निकल जाते हैं लिपिड बाइलेयर से। लेकिन जो पोलराइज्ड है, जो पोलराइज्ड मॉलिक्यूल्स हैं, उनके लिए फैसिलिटेट करने के लिए डिफ्यूजन को देयर इज अ कैरियर प्रोटीन, ओके दैट्स ऑल। आई थिंक वेरी सिंपली आई हैव ट्राइड टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। चलो अब the movement of molecules across the membrane, okay across the membrane तो बेटा facilitated diffusion से चले जाएगा, but across the membrane का मतलब है बेटा across the membrane along the gradient, okay membrane को क्रॉस तो कर रहा है लेकिन along the gradient है, मतलब ज्यादा से कम की तरफ, उसके लिए एटीपी की जरूरत नहीं है। बट अब यहाँ पे देखो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन को मूव करके तो जा रहे हैं, लेकिन अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट दैट मच,
नो दैट मीन्स लोअर से हायर की तरफ मूव करना, इसके लिए एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी की जरूरत है, एटीपी इज यूटिलाइज्ड। ओके, एग्जांपल यहाँ पे दिया है जैसे सोडियम और पोटेशियम पंप। ठीक है, चलो दैट्स ऑल अबाउट द सेल मेम्ब्रेन। अगर कुछ आपको डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो इन द कमेंट बॉक्स। ओके, देन it is a non-living rigid structure found outer to the plasma membrane of the fungi and plants। ठीक है, तो सेल वॉल क्या है? इट इज द नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर। कहाँ पे है? आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर है, ऑफ फंगाई एंड प्लांट्स। आप ये कहाँ पे देख सकते हो बेटा? फंगाई में देख सकते हो, प्लांट्स में देख सकते हो, एनिमल्स में बिल्कुल नहीं देखोगे। ठीक है, सो सेल वॉल ऑफ algae इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। बेटा आपको इस पे इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो हमारा सेकंड चैप्टर है वहां पे आप देख सकते हो, सारी चीजें आपको दी गई हैं। ठीक है, इन अदर प्लांट्स इट कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, पेक्टिन्स, प्रोटीन। तो ये सारी चीजें किस में होती हैं? प्लांट्स में आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, जस्ट द कॉम्पोजिशन आई हैव गिवन यू लिटिल डिटेल। चलो अब सेल वॉल देखो बेटा। अब सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल, ओके, जो अभी यंग प्लांट सेल है ना, मतलब अभी इट इज इन अ वेजिटेटिव स्टेज। ओके, एक प्लांट है, अभी वो ग्रो, प्लांटलेट से थोड़ा ग्रो किया, कुछ 3-4 साल ही हुए हैं उस प्लांट को, अभी उसका प्लांट जो है ना वो भी यंग प्लांट सेल के स्टेज में है। ठीक है, तो अब क्या होगा? ऐसे प्लांट सेल वॉल को आप कहते हो प्राइमरी वॉल। ठीक है, प्राइमरी वॉल क्यों कहा गया है? बिकॉज दे आर ग्रोइंग, नो, वो अभी भी ग्रो कर रहे हैं, वो एकदम अडल्ट स्टेज में नहीं गए। सो दे हैव टू रिटेन द कैपेबिलिटी ऑफ ग्रोथ। ठीक है, उनका जो ग्रोथ का कैपेबिलिटी है, जो क्वालिटी है, उसको रिटेन रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अभी भी मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ बहुत ज्यादा है वहां पे, हर जगह पे, एवरी पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, तो वहां पे आप जो देखते हो सेल वॉल, वो प्राइमरी सेल वॉल कहलाता है, दैट इज इन द यंग प्लांट सेल। बट जैसे ही, ओके, जैसे ही ग्रेजुअली डिमिनिशेस एज द सेल मैच्योर्स एंड सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड। ठीक है, जैसे ही सेल मैच्योर होने लगता है, अभी जो प्राइमरी सेल वॉल था ना, यंग सेल वॉल, ठीक है, तो इससे सेकेंडरी की तरफ मूव करेगा एज द सेल बिकम्स मैच्योर और द प्लांट्स बिकम अडल्ट। ठीक है, जब अडल्ट होने लगता है तो मैच्योर होने लगता है, तो वहां पे सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन होने स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो कैसा होगा ये स्टार्ट आप देख लो। सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन, है ना। सेल वॉल के अंदर क्या रहेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन की तरफ वहां पे टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन का ये डेवलपमेंट होता है। क्लियर? एनी डाउट्स? ओके, इफ यू लुक एट दिस पिक्चर बेटा, इस पिक्चर में तुम देखो, ओके, यू कैन सी हियर, ये आउटर वॉल है, एकदम से बाहर वाला। बेटा जो सेल वॉल है ना, उसमें भी लेयर्स होते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, प्राइमरी, सेकेंडरी, ठीक है, मिडिल मिडिल लैमेले, ऐसे बहुत सारे होते हैं। क्लियर? चलो, तो अभी जो आप बाहर देख रहे हो ना, ये क्या है? ये प्राइमरी है। ठीक है, सो व्हाट यू सी इन द आउटसाइड इट इज प्राइमरी। ठीक है, अब मैंने आपको बताया सेकेंडरी वॉल इनर साइड में बनेगा, तो ये भी इनर साइड जो है ना, ये कौन है? ये सेकेंडरी है। अभी प्राइमरी सेकेंडरी के बीच में यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आता है, देखो, तो यहाँ पे डेंसिटी उसकी मेजर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे डेंसिटी मेजर होती है, एंड यहाँ पे जो डेंसिटी मेजर होगी, इसमें बीच का जो स्ट्रक्चर ना, इसको हम कहते हैं मिडिल लैमेले। Okay, between the primary wall and the secondary wall there is a middle lamellae, and that lamellae is majorly made up of calcium pectate। ठीक है, सो कैल्शियम पेक्टेट का बना हुआ होता है, आप देख सकते हो। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो बेटा, हियर आई यू कैन सी हियर इट्स मिडिल लैमेल्ले। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, फॉर यूज्ड फॉर द अडेशन। सो दिस इज दैट मिडिल लैमेल्ले। क्लियर? कुछ डाउट है यहाँ पे आपको? ओके, अब यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा आएगा बेटा। व्हाट इज प्लाज्मोडेस्माटा? इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द टू सेल्स। अगर समझ लो कोई सेल्स को इनको कम्युनिकेट करना है, ठीक है, ए से बी को कम्युनिकेट करना है, बी से सी को कम्युनिकेट करना है, तो वो क्या करेंगे बेटा? इनके बीच में यहाँ पे पिट्स होते हैं। ठीक है, पिट्स होते हैं, छोटे छोटे पिट्स होते हैं ऐसे दो सेल्स के बीच में। तो यहाँ पे क्या होगा? इन्फॉर्मेशन ए से बी को जाएगी एंड बी से ए को जाएगी। ठीक है, जैसे कोई एक स्पोर का इन्फेक्शन हो गया, कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया, तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर? ओके,
चलो लेट्स मूव अहेड देन. सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल? ये तो आई थिंक सारे बच्चों को पता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल. ओके, सो इट गिव्स द शेप टू द सेल, it protects the cell from the mechanical damage and infection, it helps इन द सेल टू सेल इंट्रैक्शन. आई टोल्ड यू राइट, अगर एक सेल में कोई प्रॉब्लम हो गया, समझ लो एक सेल यहाँ पे है, देयर आर ग्रुप ऑफ सेल्स, लेकिन एक सेल में कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, फंगल हो गया, बैक्टीरियल हो गया, बैक्टीरियोफेज, वॉट एवर इट इज, ठीक है. तो भी अगर एक सेल डैमेज हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे ना, केमिकल रिस्पॉन्सेस सेंड किए जाते हैं टू द नेबरिंग सेल्स. अभी नेबरिंग सेल्स क्या करेंगे, उसके एंटेगोनिस्टिक, okay, whatever the infection has occurred, consider कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, तो उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट कोई भी एंटेगोनिस्टिक केमिकल रिलीज करते हैं वो कौन से, नेबरिंग सेल्स. तो ये कैसे पता चला इनको, क्योंकि यहाँ पे ए इन्फेक्शन हुआ ना, ए में इन्फेक्शन हुआ तो इसने प्लाज्माडेस्माटा के थ्रू कम्युनिकेट किया बगल के सारे सेल्स को. समझ में आ रहा है? सो दिस इज सेल टू सेल इंट्रैक्शन. क्लियर? इसके अलावा सेल वॉल एक डेफिनेट शेप देता है, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट इट हेल्प्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज. जैसे आप लोग खामोश नहीं बैठते ना, अगर आपको कोई भी प्लांट दिख गया आप उसको क्या करोगे, टच करोगे, उसको खींचने की कोशिश करोगे. सो व्हाट इज दैट? दैट इज अ मैकेनिकल स्ट्रेस दैट आर गिविंग टू द प्लांट, ठीक है. तो उसके अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन होती है विद द हेल्प ऑफ सेल वॉल. देन इट एक्ट्स एज अ बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है. कोई भी ऐसे अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स जो एंटर करना चाहते हैं इनसाइड द सेल व्हिच इज नॉट नीडेड, उनको बाहर ही रखता है, ठीक है. सो दिस इज अबाउट द सेल मेम्ब्रेन. कमिंग टू एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, बेटा प्लीज रिमेंबर दिस पार्ट. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में बहुत बार क्वेश्चन आया है, व्हाट इज इंक्लूडेड इनसाइड द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है. तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स 4 ऑर्गेनेलीज, एक ईआर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, ठीक है. 4 होते हैं, प्लीज डू रिमेंबर. नाउ व्हाट इज दिस? इट्स अ ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स हैविंग अ कोऑर्डिनेटेड फंक्शन. मतलब इनका जो फंक्शन है ना, ये कोऑर्डिनेटेड है, एक दूसरे के बगैर ये अपना फंक्शन कंप्लीटली परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है. दे आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर एंड दे आर कोऑर्डिनेटेड ऑल्सो, ठीक है. समझ आ रहा है? चलो we'll study one by one. So coming to first, endoplasmic reticulum. So can you see here, this is the structure of endoplasmic reticulum. These are a network of tiny tubular structures scattered in the cytoplasm. ठीक है, साइटोप्लाज्म में scattered होते हैं, ऐसे tubular structures हैं, ठीक है. And from where do you see coming through? अब ये एक सेल है बेटा, अब ये सेल है, तो inside the cell there is a nucleus, ठीक है. तो जहां पे न्यूक्लियर पोर है ना, तो वहां से शुरू होता है इनका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइक दिस, ओके, फ्रॉम न्यूक्लियर पोर. तो ऐसे करके ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है. सो फ्रॉम हियर इट स्टार्ट्स विद द न्यूक्लियर पोर, ठीक है. चलो नाउ ईयर डिवाइड्स द इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू 2 कंपार्टमेंट्स लाइक लुमिनल एंड द एक्स्ट्राल्यूमिनल, ठीक है. जो लुमिनल है वो इनसाइड द ईआर है, एंड एक्स्ट्राल्यूमिनल क्या है, वो साइटोप्लाज्म में बिलोंग करता है, ठीक है. कैन यू सी हियर? कैन यू सी हियर? ठीक है. अब ये जो अंदर वाला पार्ट आप देख रहे हो, कैन सी दिस इनसाइड वाला पार्ट. सो व्हाट इज दिस इनसाइड वाला पार्ट? दिस इज लुमिनल व्हिच इज इनसाइड द ईआर. अब बेटा कुछ कॉम्पोजिशन ना, ओके, कुछ लुमेन्स यहाँ पे बाहर होते हैं, जैसे देखो ये भी एक लुमेन है जो एकदम बाहर है, ओके. वी कॉल इट एज एक्स्ट्राल्यूमिनल. जैसे यहाँ पे देखो ये भी एक्स्ट्राल्यूमिनल है, ये एक्स्ट्राल्यूमिनल है, यहाँ पे एक्स्ट्राल्यूमिनल है. सो व्हाट आर दिस? ओके, दीज आर कॉल्ड एज एक्स्ट्राल्यूमिनल कंपार्टमेंट्स, जो साइटोप्लाज्म को जो कंपोनेंट है उसका कंपोनेंट वहां पे होता है. अब ये इनसाइड है तो इनको हमने कह लिया लुमिनल, ठीक है. नाउ ईआर इज ऑफ 2 टाइप्स, रफ एंड स्मूथ, ठीक है. सो व्हाई दैट डिफरेंशिएशन? बिकॉज रफ हैज प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स एंड स्मूथ डजंट हैव एनी राइबोसोम्स, ठीक है. स्मूथ के पास राइबोसोम्स नहीं होता. उसके अलावा जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा बहुत सिमिलर ही होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर बोथ रफ एंड स्मूथ, ठीक है. चलो, तो रफ में आप ज्यादा देख सकते हो बेटा, यू विल सी द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स मोर, ओके. ऐसे जो लंबे लंबे से ऐसे ट्यूब्यूल्स हैं ये ज्यादा देखने को मिलेंगे आपको आरईआर में विद द प्रेजेंस ऑफ सो मेनी राइबोसोम्स. चलो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग. सो आरईआर बेयर राइबोसोम ऑन द सरफेस. RER is frequently observed in the cells actively involved in protein synthesis and secretion. Okay, they might ask you what is the function of RER? What you have to say? Protein synthesis and secretion. ठीक है, दोनों ही काम करते हैं. नाउ दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस. मैंने बताया ना, जो न्यूक्लियर पोर से भी स्टार्ट हो सकता है या फिर आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस. बेटा न्यूक्लियस के भी तो 2 मेम्ब्रेन है ना, इट इज ऑल्सो बाई लेयर, ओके. तो 2 लेयर होते हैं, ऑलराइट.
तो वहां पे भी जो बाहर वाला लेयर है वहां से भी शुरू हो सकता है, कुछ तो पोर से भी शुरू होते हैं। क्लियर? Okay. Then, smooth endoplasmic reticulum, what is this? Here, ribosomes are absent. It is the major site for the synthesis of lipid. यहाँ पे लिपिड बनता है बेटा. Please do remember, SER में लिपिड बनता है, RER में प्रोटीन बनता है. ठीक है? So you have to remember that. And in animal cells, lipid-like steroidal hormones are synthesized in SER. ठीक है? तो हम एनिमल्स में बेटा स्टेरॉयडल हार्मोन्स बनते हैं. ठीक है? हमने पढ़ा है स्टेरॉयडल हार्मोन्स का मैकेनिज्म भी, राइट, इन द लास्ट चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन. वहां पे मैंने आपको बताया था. डू यू रिमेम्बर? किसी के रिसेप्टर्स मेम्ब्रेन में होते हैं, किसी के रिसेप्टर्स सेल के अंदर होते हैं, इनसाइड द न्यूक्लियस. ओके, हार्मोन रिसेप्टर्स. आई होप यू रिमेम्बर. चलो, कमिंग टू गोल्गी apparatus बेटा, इनका काम क्या है और ये क्या है देखो. सो दीज आर डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स नियर न्यूक्लियस. ठीक है, न्यूक्लियस के करीब में अगल बगल में ही रहते हैं, बट दीज आर वेरी डेंसली स्टेन्ड. अगर आप एक सेल के स्ट्रक्चर को विद द हेल्प ऑफ एनी स्टेन, अगर कोई भी स्टेन ले लो, सैफ्रन ले लो, ओके, मिथिलिन ब्लू ले लो, आयोडीन ले लो, कुछ भी, ओके, कोई भी ऐसा स्टेन आप लेके इसको स्टेन करोगे ना, तो ये बहुत डेंसली स्टेन होगा. पूरे सेल में आपको गोल्गी apparatus बहुत अच्छे से दिखेंगे. ठीक है, that's why we call them as densely stained structure present near the nucleus. Okay, so it is first observed by Camillo Golgi, hence the name Golgi apparatus or the Golgi body. ठीक है, now they consist of flat disc-shaped sacs called cisternae. Don't get confused between cristae and cisternae. ठीक है, बिल्कुल confusion नहीं करना है. ठीक है, क्रिस्टे बेटा आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, cisternae is present in Golgi apparatus. ओके, एंड देर स्टैक्ड पैरेलली टू ईच अदर. ये एक के बगल में एक, एक के बगल में एक, ऐसे पैरेलली स्टैक्ड हैं देखो. ठीक है, दिस आर पैरेलली स्टैक्ड, वन अबाउट द अदर आप कह सकते हो. ऑलराइट, देन सिस्टरने आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड विद द कॉन्वेक्स सिस फेस. ओके, तो दिस गोल्गी बॉडी हैज द टू फेजेस. एक सिस फेज होता है, एक ट्रांस फेज होता है. जो सिस फेज है वो कॉन्वेक्स है. ओके, तो जो सिस फेज है आप यहाँ पे कह सकते हो, इट इज रिटर्न हियर, इट इज कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड विद द कॉन्वेक्स सिस फेज एंड अ कॉन्केव ट्रांस. ओके, सो सिस एंड ट्रांस फेजेस आर टोटली डिफरेंट बट दे आर इंटरकनेक्टेड. ठीक है, टोटली डिफरेंट है एंड दे आर इंटरकनेक्टेड, आप ऐसे भी कह सकते हो. ठीक है, सो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है बेटा, दिस इज द सिस फेज एंड दिस इज द ट्रांस फेज. ओके, ये ट्रांस फेज है. क्लियर? ये कॉन्वेक्स है. ओके, तो दैट इट्स शोइंग हियर एज अ कॉन्वेक्स. ओके, तो यहाँ पे देखो ये अंदर की तरफ कॉन्वेक्स है. ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्केव है. तो यहाँ से जो भी है ना, अब लेट मी टेल यू व्हाट इज इट्स फंक्शन. मैं फंक्शन में आपको बताती हूँ एक्चुअली. ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या है बेटा, यहाँ पे देख लो. secretes materials to the intracellular targets or outside the cell. Materials to be packed as vesicles from the ER fuse with the cis phase and move toward the trans. That is why Golgi apparatus remains in close association with ER. बेटा ये जो Golgi body है ना, ये ER के हमेशा close होते हैं. क्यों होते हैं? अब देखो क्या हो रहा है ना. अब ये न्यूक्लियस के बगल में ER है. ठीक है, ER में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, स्मूथ भी है. ठीक है, स्मूथ वाला लिपिड बनाएगा, रफ वाला प्रोटीन बनाएगा. अब समझ लो यहाँ पे प्रोटीन बना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बना. अब ये प्रोटीन क्या होगा, अब ये जाएगा सिस की तरफ. ओके, सिस फेज ऑफ द गोल्गी बॉडी. अब ये सिस से फिर ट्रांस से निकलेगा, अब ये उसके टारगेट प्लेस में जाएगा. समझ लो इसका टारगेट प्लेस कौन है, आउटसाइड द सेल या फिर सेल मेम्ब्रेन. समझ लो, कुछ भी हो सकता है इसका टारगेट प्लेस. ठीक है, तो ये क्या होगा, सिस से अंदर जाएगा, ये पैक होगा. हाउ इट इज पैक्ड मैम, इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स. ओके, ऐसे देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे देखो न्यूली फॉर्म्ड वेसिकल, यहाँ पे दिख रहा है ये वेसिकल. तो वेसिकल की शक्ल में ये लोग क्या होते हैं बेटा, ग्रुप होते हैं, या फिर वेसिकल की शक्ल में इसके अंदर भरा होता है. समझ लो प्रोटीन हो गया या फिर कोई लिपिड हो गया, वट एवर इट इज. ठीक है, अभी हम लोग एग्जाम्पल प्रोटीन का ले रहे हैं, तो प्रोटीन याद रखो. तो RER ने प्रोटीन बनाया. प्रोटीन अभी कहाँ पे गया, सिस के थ्रू गोल्गी बॉडी में गया. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज गेटिंग पैक्ड, प्रोटीन इज गेटिंग पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसल्स. अब ये क्या करेगा, सिस से ट्रांस की तरफ जाएगा एंड इवेंचुअली मूव इनटू इट्स टारगेट. ठीक है, तो ऐसे समझ लो बेटा, यहाँ पे ना सील होता है. ओके, दैट प्रोटीन इज गेटिंग सील्ड. तो सील करके इसका, जैसे पोस्ट ऑफिस में आप देखते हो ना, आपको एक चीज लेके जाते हैं पोस्ट ऑफिस में. पोस्ट ऑफिस में वो लोग क्या करते हैं, एक स्टैंप लगाते हैं, है ना, ताकि हाँ भाई दिस इज द एड्रेस, यहाँ पे जाना है.
ओके, एड्रेस लिख के स्टैंप वगैरह लगाते हैं ना, तो यही काम करता है हमारा गोल्गी बॉडी। ठीक है, इट एक्ट्स एज अ पोस्ट ऑफिस। देन proteins synthesized by ribosomes on ER are modified in the cistern of the Golgi apparatus before they are released from its transphase। मैंने बताया ना, सिस से अंदर घुसता है, पैकेजिंग होती है, मॉडिफाई होता है, ठीक है, मॉडिफाई वगैरह होके, पैकेज वगैरह होके ट्रांस से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो अब समझ लो बेटा, प्रोटीन अंदर गया है गोल्गी बॉडी के, एक सेकेंड, ओके, प्रोटीन अंदर गया है गोल्गी बॉडी के, तो अब वो क्या होगा, वो बनेगा ग्लाइकोप्रोटीन। क्यों, कैसे बनेगा, क्या होगा बेटा, गोल्गी बॉडी में जो प्रोटीन आया है उसको ये ग्लूकोज यूनिट्स ऐड करवाएंगे। जैसे ग्लूकोज यूनिट्स ऐड करवाएंगे प्रोटीन को या लिपिड को, वो बन जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन या फिर ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, जो लिपिड है वो एससीआर से आया है, जो प्रोटीन है वो आरईआर से आया है। ओके, जो ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड है वो गोल्गी बॉडी में बनते हैं एंड इट एक्ट्स एज अ पोस्ट ऑफिस। वहां पे पैकेजिंग होती है चीजों की, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, एंड इट इज ट्रांसफर टू इट्स पर्टिकुलर टारगेट एंड लोकेशन। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। कुछ डाउट है यहाँ पे? ओके, सो द नेक्स्ट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इज लाइसोसोम। ओके, लाइसोसोम है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड विद द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्गी बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है। ओके, वेसिकुलर स्ट्रक्चर है मतलब वेसिकल्स की फॉर्म में है। ओके, फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग, जो पैकेजिंग का प्रोसेस हो रहा था ना गोल्गी apparatus में, उसके बदौलत ये बने हैं बेटा। ठीक है, तो यू कैन नॉट से, मतलब जितने भी बने हैं ना गोल्गी बॉडी से, सारे लाइसोसोम नहीं बनते। ओके, सो देर आर सो मेनी वेसिकल्स बेटा, जो गोल्गी बॉडी है ना वो लाइसोसोम बना सकता है। ठीक है, मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स लाइसोसोम भी बना सकता है, इसके अलावा मैंने बताया ना आपको, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड वो भी बनाएगा। Clear? Now, so what is this lysosome? This lysosomal vesicles, they contain many types of hydrolytic enzymes। मतलब क्या, hydrolytic enzyme मतलब क्या, these are the digesting enzymes। ठीक है, अब lipases देख लो, it will digest the lipid, protease देख लो, it will digest the protein, carbohydrates, it will digest the carbohydrates। ठीक है, तो ऐसे करके सारे हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स है, वी कॉल देम एज द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। नाउ दे आर एक्टिव एट द एसिडिक पीएच, एसिडिक पीएच में बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। दे डाइजेस्ट ऑल दिस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स। नाउ बेटा यहाँ पे आपको एक और एक चीज पता होनी चाहिए, अगर समझ लो कोई भी एक ऐसा खतरा आ गया सेल्स को, ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा बिटवीन द सेल्स, दो सेल्स के बीच में एक जंक्शन होता है, उस जंक्शन से कम्युनिकेट करते हैं ना दोनों सेल्स। अब क्या होगा बेटा, कम्युनिकेट तो कर लिए, अब सब अगल बगल के सेल्स को पता है कि हमारे पास इन्फेक्शन हुआ है बैक्टीरिया का, अब इसको कैसे रोका जाए, है ना, रोकने के लिए क्या करेंगे। अब देखो बेटा, नेबरिंग सेल्स ने उसके एंटागोनिस्टिकली केमिकल को ही बना लिया होगा, एक ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है, समझ लो जो इन्वेजन हुआ है एक्सटर्नल सब्सटेंस का, वो अगर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, बहुत ज्यादा डेंजरस है, तो ऐसे केसेस में जो सेल इन्फेक्ट हुआ है वो क्या करेगा, खुद का सुइसाइड करवाएगा। ओके, खुद का सुइसाइड करवाएगा, ताकि जो भी इंफेक्शन मेरे अंदर हुआ है वो नेबरिंग सेल्स तक ना जाए, और इंस्टेड ऑफ, अगर एक पत्ता खराब हो गया तो चलेगा, पूरा प्लांट खराब होना नहीं चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव है। समझ आ रहा है आप लोगों को, एक एग्जांपल दे रही हूं मैं। इसीलिए यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस मतलब क्या, सुसाइड। ओके, सो प्रोग्राम्ड सुसाइड, सुसाइड, इसीलिए तो इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं ना लाइसोसोम को। ठीक है, तो प्रोग्राम्ड सेल डेथ कहते हैं बेटा इसको, ये प्रोग्राम कराता है, हाँ भाई ऐसे से होना है, अब तो मेरा सेल डेथ में करवाऊंगा क्योंकि दूसरों को बचाना है। ठीक है, तो ऐसे ये कोई रीजन की वजह से ऐसे सुसाइड कराता है, तो इसको हम कहते हैं बेटा एपोप्टोसिस, विच इज कॉल्ड एज प्रोग्राम्ड सेल डेथ, टू प्रिवेंट द अदर स्ट्रक्चर्स फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड और डैमेज्ड। ठीक है, अभी एक सेल कुर्बान हो जाता है, बाकी सारे तो बच जाएंगे, एक सेल मर जाएगा, ये कुर्बान हो गया, इसने तो अपने खुद को शहीद कर लिया, बाकी वाले तो बच जाएंगे, है ना। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। देन वैक्यूल, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म।
ठीक है, तो ये भी एक स्पेसेस हैं, इनके सराउंडिंग मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस। देन इट कंटेन्स वाटर और सैप और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल्स दैट आर नॉट यूजफुल फॉर द सेल। बेटा वैक्यूल्स के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। ओके, जब हम सैटरडे संडे की क्लास करेंगे ना, उस टाइम पे मैं आपको इसका समझाऊंगी और ज्यादा डिटेल में। वैक्यूल्स में भी टाइप्स होते हैं बेटा, देयर आर 3 टाइप्स, आई टेल यू। ओके, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, नॉर्मल वैक्यूल है, बहुत सारे होते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो, जो नॉर्मली एक वैक्यूल की बात हो रही है, इट हैज अ सिंगल मेम्ब्रेन एंड दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट। ठीक है, जो वैक्यूल का मेम्ब्रेन है उसको हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं, बस एक डिफरेंट नेम है उसका और कुछ नहीं। ठीक है, सो इन प्लांट सेल वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। मतलब आप एक सेल देखोगे तो उस एक सेल में क्या होगा, प्लांट के 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ दैट प्लांट सेल इज ऑक्यूपाइड बाय वैक्यूल्स। आपने देखा होगा ना, सारे प्लांट सेल्स में आप देखो सेंट्रल बिग वैक्यूल होता है, वैसे एनिमल सेल्स में देखो साइड में पेरिफेरल रीजन में छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, है ना। चलो, तो यहाँ पे देखो, इन प्लांट्स टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयॉन्स। ओके, जो टोनोप्लास्ट है मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, इट फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयॉन्स एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स इनटू द वैक्यूल। ठीक है, तो वैक्यूल से, वैक्यूल के बाहर साइटोप्लाज्म तक ये लोग ना, कुछ जो टोनोप्लास्ट है मेम्ब्रेन, ये कुछ मटेरियल्स इन एंड आउट कर सकता है। ठीक है, सो इससे क्या होगा, द कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन, वो मेंटेन करके रखता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है देखो, हेंस देयर कॉन्सेंट्रेशन इज हायर इन वैक्यूल देन इन साइटोप्लाज्म। देखो बेटा, वैक्यूल में जो सैप है ना, उसका कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा ज्यादा होता है कंपेयर टू द अदर साइटोप्लाज्म। ये चीज आप याद रखो। ओके, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे आपको याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है, वैक्यूल्स के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है कंपेयर टू द साइटोप्लाज्म। अब इससे क्या होगा, आप ये फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, अभी जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है ये देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो जो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वैक्यूल से, इससे क्या होगा, टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयॉन्स एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स इनटू द वैक्यूल। अब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट है, फिर भी वैक्यूल के अंदर ही जा रहा है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में कम है सॉल्ट्स, स्टिल इट्स गोइंग अगेंस्ट द ग्रेडियंट। ओके, ऐसे होता है। चलो, नाउ इन अमीबा द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हेल्प्स फॉर एक्सक्रीशन। ठीक है, यहाँ पे एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा है एंड वी कॉल इट एज अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये मैं बताऊंगी बेटा, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में, डिस्कशन में, वहां पे मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी। एंड इन अदर मेनी सेल्स लाइक प्रोटिस्ट, वहां पे आपको फूड वैक्यूल्स दिखेगा एंड दे आर फॉर्म्ड बाय एनगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स। ठीक है, फूड पार्टिकल्स एनगल्फ होंगे तो वहां से भी एक वैक्यूल बनता है, वो भी आप देख सकते हो। देयर आर मेनी टाइप, एक दूसरा है गैस वैक्यूल। ओके, ऐसे बहुत कुछ होते हैं, वो मैं आपको क्वेश्चन आंसर सेशन में बताऊंगी। ठीक है, तो बेटा टाइम तो हमारा हो गया है। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी और एल्स यू कैन लीव द क्लास। अगर कुछ भी आपको डाउट है तो बेटा आप पूछ सकते हो। अच्छा, ये तो हमने किया नहीं ना, माइटोकॉन्ड्रिया, कल करेंगे। एनी डाउट्स? नो? ओके, थैंक यू शशि रेखा। एनी डाउट्स? ओके, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। थैंक यू।